आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अकाउंटिंग वाउचर क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं अकाउंटिंग वाउचर के लिए, किस प्रकार हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सप्लेन किया है चेंज वाउचर मोड क्या होता है। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया है कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर। इन तीनों वाउचर की हम लोग रिपोर्ट कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दीपक नाम का एक यंग शॉपकीपर है जो क्या रिसेंटली उसने अपनी दुकान खोली हुई है और वो चाहता है कि मैं अपने सेल्स परचेज एक्सपेंस को अच्छी तरह मैनेज करूं। इससे पहले वो क्या है मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। अब वन डे अ फ्रेंड टोल्ड हिम, एक दिन उसके दोस्त ने टैली के बारे में बताया, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज फॉर अकाउंटिंग। दीपक हैव नेवर यूज ए कंप्यूटर फॉर अकाउंटिंग बिफोर। He was used to written everything in a notebook, cash in open page, one page, sales in another page, and expenses another page, purchases another page, somewhere else. Another day, his accountant explained, Deepak ji, every business transaction must be written in his notebook. In Tally, we do not write it on paper. We record it, use something called as accounting voucher. Deepak was curious, what is this voucher? The accountant said that think about voucher a slip where you return the detail of every transaction. In Tally, it like a entry screen where you record every kind of transaction. His accountant explained to use different vouchers. Deepak run a small shop. Every day, different type of transaction happen in his business. Deepak had just start enter in few transaction in Tally. When he become confused, he asked his accountant, there are so many type of voucher in Tally. How do I know which one use? The accountant smiled and said, don't worry, Deepak. Each voucher is like a different page in your old notebook. Let me explain. अब उसके अकाउंटेंट ने उसको कहा कि किस प्रकार टैली में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर को। पहला है सेल वाउचर, जिसमें हम लोग अपनी सारी सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंट ने बताया कि दीपक सोल्ड क्लोथ worth 10,000 to a customer. He was record sale voucher, and Deepak accountant explained when Deepak bought new stock for shirt worth 8,000 for his supplier, he will use a purchase voucher. Accountant explained another voucher, payment voucher. Deepak pay 5,000 rent for his shop in cash. He will enter in payment voucher. When he paid rent or supplier, he used payment voucher. Receipt voucher, a customer clear his pending bill and paid Deepak 7,000 in cash. When he received money from customer, he used a receipt voucher. Journal voucher, Deepak calculate 1,000 depreciation on his furniture. When he need to record adjustment like depreciation or transfer between account, he used journal voucher. Last, contra voucher, Deepak deposit 12,000 from cash in his bank account. This is a transaction. He will use a contra voucher. When he move cash between his bank account and cash box, he use a contra voucher. What is accounting voucher in Tally? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट in which contain
detail information about money transaction. In Tally, an accounting voucher is entry screen where you record every kind of transaction you pass. Transaction like sales voucher, purchase voucher, payment voucher, receipt voucher, journal voucher, and contra voucher. Every voucher update your book of account automatically. Type of accounting voucher in Tally, we will already see contra voucher. जब हम लोग कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करते हैं. पेमेंट वाउचर जब भी हम लोग कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं तब हम लोग पेमेंट वाउचर, या सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं तब हम पेमेंट वाउचर. रिसिप्ट वाउचर हम जब हम कोई मनी बिजनेस को रिसीव होती है तब हम लोग रिसीव वाउचर का. जनरल वाउचर का यूज हम तब करते हैं जो इन सारे वाउचर में नहीं आती. कैश, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज वाउचर के अंदर नहीं आती, उनको हम जनरल वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. इन डिटेल हमने अभी इनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर. कॉन्ट्रा वाउचर भी एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है जिसमें हम लोग यूज करते हैं कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. बोथ एंट्री आती हैं. एग्जाम्पल है डिपॉजिट करना कैश इन बैंक, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, ट्रांसफर बिटवीन बैंक. शॉर्टकट की है F4 पे. अनदर अकाउंटिंग वाउचर है पेमेंट, जिसको हम यूज करते हैं ऑल पेमेंट, चाहे वो कैश से की हो, चाहे बैंक से की हो, चाहे वो चेक से की हो. दैट इज रिकॉर्डेड इन पेमेंट वाउचर. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे कर रहे हैं, अपने सप्लायर की पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं. रिसिप्ट वाउचर शॉर्टकट की इज F6. इट इज ए अकाउंटिंग वाउचर. इट यूज टू रिकॉर्ड ऑल मनी रिसीव्ड. एग्जाम्पल है रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. कंपनी ने सेल की तो कंपनी को क्या मिल रही है, मनी. कंपनी ने किसी से लोन लिया या फिर कंपनी ने कुछ डिपॉजिट थे उनके ऊपर कंपनी को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है. जनरल वाउचर बेसिकली यूज फॉर एडजस्टमेंट, प्रोविजन एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड. एग्जांपल है कि डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शंस, provision for tax, outstanding expenses. These are recorded in journal voucher. Another voucher is purchase voucher. Purchase voucher is used for buying the goods, buy the raw material, buy the office supply. Sale voucher is used to record goods and services to sold. For example, I sold the goods to customer on credit and sale. Credit note is used. Control F8 used when customer return the goods. Debit note is used for return the goods when supplier used when we return good to supplier. Memorandum voucher used for provisional temporary entry do not affect account until converted. Pending approval entries like. दीपक था, अपनी नया शॉप जो चला रहा था, उनने समझा कि अकाउंटिंग वाउचर के अकाउंटिंग एक वाउचर है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी डिटेल दी जाती है. चाहे आप परचेज कर रहे हो कितनी क्वांटिटी में, क्या प्राइस है, किससे परचेज कर रहे हो और क्या जीएसटी लग रहा है, तो ये परचेज वाउचर होते हैं. तो दीपक को ये सब रिकॉर्ड कहाँ करना होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है टैली, जिसके एंट्री स्क्रीन में हम लोग बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं. अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हम लोग टैली के अंदर किस प्रकार वाउचर एंट्री मोड का यूज करते हैं, चेंज वाउचर एंट्री मोड का यूज करते हैं, किस प्रकार हम लोग एक्टिव करते हैं सिंगल एंट्री मोड इन टैली प्राइम. व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल एंट्री मोड इन टैली
prime, how to record the transaction in single entry mode in teleprime, how to record transaction in double entry mode in teleprime, for which voucher is the single entry mode is applicable in tally, how do payment receipt contra voucher in single mode, and how to do payment receipt and contra in double entry mode in tally। देख लेते हैं कि आप जब भी क्या है जो हमारे मैनुअल अकाउंटेंट होते हैं वो क्या है उनकी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो उन दो अकाउंटेंट को हम किस में एंट्री करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, जो कि मैनुअल तरीके की होती है। और सिंगल एंट्री सिस्टम वो होती है जिसमें क्या है ऑलरेडी हमने कैश से पेमेंट करनी है। सपोज कीजिए हमने कैश रिसीव्ड करना है, तो रिसीव्ड करना है कैश, तो ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड आपको गिवन दी होगी। और अगर आपने कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश ऑलवेज डेबिट होगा। इसको आगे समझेंगे हम कुछ इस प्रकार। आप अपनी टेली स्क्रीन में क्या है कंट्रोल एच प्रेस करोगे, स्विच कर सकते हो सिंगल मोड में और डबल मोड में। सिंगल मोड में सिंपली क्या आता है, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता है सिंगल। आपको अगर पेमेंट कर रहे हो तो डेबिट क्या होगा, कैश या डेबिट का फिक्स होगा और किस पार्टी को पेमेंट कर रही है। और ऐसे ही रिसिप्ट वाउचर में भी सेम रहता है। रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में आपका क्रेडिट पहले ही बता दीजिए कैश एंड बैंक से होगी, उसके नीचे डेबिट की आप एंट्री करते हो। डबल एंट्री सिस्टम जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉर्मेट है उसी का यूज करते हैं, जिसमें हम टू साइडेड अकाउंट लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। सिंगल एंट्री मोड इस प्रकार का दिखता है आपको कुछ, ये है अकाउंट, इसमें पहले ही डिफाइन कर देते हैं कैश ऑन बैंक के अलावा और कोई एंट्री नहीं आती और किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में आपका डेबिट और क्रेडिट आता है, इसको हम अभी देखेंगे, ये पेमेंट वाउचर में जब मैं आपको इसकी शॉर्टकट, अगर आपको यहाँ पे क्या है बाय दिख रहा है, इसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करना है तो F12 प्रेस करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, वहां पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। टू और बाय ऑलवेज डेबिट के लिए यूज होता है, टू ऑलवेज क्रेडिट के लिए यूज होता है। ये हम लोग ट्रेडिशनल वाउचर में यूज करते हैं। अगर हम लोग इस तरीके के टू बाय को ना यूज करके हम लोग क्रेडिट और डेबिट यूज करें तो ज्यादा मोर क्लियर होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम किसी अपने एक्सपेंस या सप्लायर की पेमेंट करते हैं, जिसमें डिटेल होती है कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं और किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, ये डिटेल गिवन दी जाती है और प्रॉपर साइन होता है। पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एनी मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। हमारा पैसा क्या है बाहर जा रहा है। व्हेन यू पे मनी फॉर एक्सपेंस एंड टू सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल बाय करते हैं, यू यूज ए पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की F5 is used to record all type of payment voucher made by the business। पेमेंट हम लोग किस में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, चेक में कर सकते हैं। कैश चेक जो बेसिकली बैंक का ही आ जाता है, यूपीआई आ गया, डीडी, इट इज ए डिक्रीज योर कैश बैंक बैलेंस। पेमेंट वाउचर ऑलवेज डिक्रीज करता है आपका कैश, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो तो बैलेंस डिक्रीज करेगा, बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक का बैलेंस। अब एक एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं कि हम लोग टैली के अंदर यह किस प्रकार करते हैं। सपोज आप अपने ऑफिस का रेंट 10,000 चेक के द्वारा करते हैं, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट क्या होगा आपका
बैंक ऑलवेज डेबिट। मैंने आपको ये यहाँ पे प्रीवियस क्लास में बताया था कि रेंट हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं और बैंक हम क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। बैंक क्या हो रहा है, एसेट है हमारी, और वो क्या हो रही है, गोइंग आउट, जा रही है बिजनेस से, एसेट हमारी कम हो रही है। लेकिन रेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है 10,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में आपने क्या लेना है, एट लास्ट हमने नरेशन लिखनी है कि ये किससे किया हुआ है, बीइंग रेंट पेड बाय द चेक। शॉर्टकट की मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, प्रेस F5 की करोगे वाउचर में तो आपको ये डिस्प्ले होगी। हम देखते हैं कि अनदर मोर एग्जांपल, सपोज आपने सैलरी पे करनी है तो सैलरी ऑलवेज डेबिट, और दूसरा अकाउंट है आपका, आपको कैश। अब यहाँ पे बैंक बताया नहीं है तो आपको क्या है, कैश ही मान के चलना है कि हमने कैश में दी 20,000। तो कैश आपका एसेट है। ये मैंने आपको पिछली अपनी प्रीवियस क्लास में बताया, जब ओपनिंग एंट्री करते थे बताया था कि हम लोग डेबिट कुछ रूल बताए थे, ट्रेडिशनल रूल एंड मॉडर्न रूल, जिसमें मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस क्यों सिलेक्ट, दो पार्ट, डेबिट कौन सी एंट्री होगी, क्रेडिट कौन सी, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। बैंक अकाउंट व्हेन पेड, जब भी हम सप्लायर का पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्या होगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हाउ टू पास पेमेंट वाउचर इन टैली, सबसे पहले गेटवे टैली पे जाओगे आप यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग वाउचर पे F5 प्रेस करोगे, जहां पे आप सबसे पहले फील करो, जो एंट्री टैली की एंट्री स्क्रीन होती है वहां पे आप फील करोगे डिटेल। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर में आप डेबिट क्रेडिट का दिया होता है, आप सिलेक्ट करोगे लेजर, एंटर करोगे अमाउंट। अगर आप पेमेंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट पे होता है, और डेबिट आपका क्या होता है, डेबिट आपका कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। एट लास्ट हम लोग नरेशन लिखते हैं, ये ऑप्शनल होता है। नरेशन इसलिए लिखी जाती है ताकि आप दूसरा, आपके साथ दूसरा अकाउंटेंट है तो आपने ये एंट्री क्यों की है तो उसे ये चीज पता लगता है। प्रेस कंट्रोल ए करके हम लोग सेव कर लेते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं कि आपने ऑफिस रेंट दिया है 10,000 बाय बैंक या चेक। आप सबसे पहले क्या करोगे, गेटवे टैली पे जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर वी शॉर्टकट की होती है, उसके बाद आप लोग F5 प्रेस करोगे। सबसे पहले डेबिट एंट्री करोगे, डबल एंट्री मोड पे है ये, आप जो करोगे एंट्री, रेंट एक्सपेंस 10,000, क्रेडिट बैंक 10,000। एट लास्ट नरेशन लिखोगे, बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय द बैंक, एंड कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद हम लोग रिसिप्ट वाउचर क्या है, रिसिप्ट वाउचर भी एक प्रकार का अकाउंटिंग वाउचर है। इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने किस किस पार्टी से रिसिप्ट की हुई है। Receipt voucher is used to record any money come into business. When you receive money from the customer or other, use a receipt voucher. Receipt voucher shortcut key is F6, is used to record all money received by the business. Receipt can be cash, check, and bank and UPI. It increase your cash and bank balance. F6 receipt voucher शॉर्टकट की एग्जाम्पल है कैश वाउचर। कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किस से रिसीव कर रहे हो, सपोज करो आप अपने कस्टमर, आपने कोई गुड सेल किया है तो कस्टमर लेजर 25,000। अगर आप बैंक से रिसीव कर रहे हो, सपोज करो XYZ लिमिटेड से आपने पैसे रिसीव किए तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट करोगे XYZ लिमिटेड। अदर इनकम रिसिप्ट, अगर कोई और इंटरेस्ट मिल रहा है आपको तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट इनकम 5,000। अब
सेम प्रोसेस है जैसे हमने पेमेंट वाउचर में गेटवे टैली पे जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, F6 प्रेस करोगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा। आप टैली कंप्यूटर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें एंटरिंग स्क्रीन में फील करोगे डिटेल, सबसे पहले डेबिट, और पर्टिकुलर पे सबसे पहले डेबिट जो है सिलेक्ट द पार्टी इनकम लेजर अमाउंट, जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो, सिलेक्ट कैश एंड बैंक फॉर रिसिप्ट, एड नरेशन ऑप्शनल है, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं 30,000 फ्रॉम गोपाल कस्टमर, गोपाल कस्टमर से, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा कस्टमर लेजर 30,000 नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अगेन इनवॉइस। अब हम ये प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार टैली में एंट्री होती है